شکیلا رفیق صاحبہ جو ہے ان کے گھر پہ ہیں. یہ بڑا دن. آپ سب جانتے ہیں کہ شکیلا رفیق جو ہیں وہ ایک اردو جو فکشن ہے اس کا بہت بڑا نام ہے، لیکن فکشن تک ہی بات نہیں، وہ محدود نہیں رہی. انہوں نے نظمیں بہت عمدہ کہیں. میں جب ان کی نظمیں پڑھتا تھا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی خوبصورت نظم نگاری جو ہے یہ، اور پھر یہ کہ جس ایج میں انہوں نے نظمیں دوبارہ سے کہنی شروع، پہلے ہو سکتا ہے اوائل عمری میں کہتی ہوں، لیکن ان کی نثر جو ہے وہ مقبول ہوئی. تو یہ بہت بڑی رائٹر ہے، اس شہر کا سرمایہ ہیں آپ، اعزاز ہیں آپ، اور ہماری جتنے لوگ تخلیق کار یہاں بیٹھے ہیں یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ایک رائٹر جو ہے وہ، پھر آپ کا کام بہت عمدہ ہے. تو آج ہم سب آپ کے یہاں دولت قدے پہ موجود ہیں اور یہ کئی حوالوں سے بہت یادگار نشست ہوگی آج. تو آپ نے ہمیں بلایا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہے، نہ صرف اردو ادب سے بلکہ بطور انسان آپ نے جس شفقت کا اظہار کیا ہے یہ ہمیں ہمیشہ یاد ہے. اب اس تقریب کی صدارت جو ہے وہ ہمارے شہر کے، اب تو بات شہر سے ملکوں تک چلی گئی اب تو شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ، انڈیا، پاکستان سب جگہوں پہ چلی گئی ہے بات. ڈاکٹر خالد سہیل صاحب جو ہیں وہ ان کی صدارت ہے. میں نظامت تو کر رہا ہوں لیکن مجھے جو پرچہ دیا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں مہمان خصوصی ہوں تو یہ میں یہ کیا کہوں، بہت ہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. سچی بات یہ ہے کہ آج کا یہ مہمان اعزاز ہونے سے زیادہ بڑا اعزاز یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں پہ جمع ہیں اور آپ کی موجودگی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ سب ایک ہے جمع ہونے کا ایک ہمارے بہانے ہیں. ہم شاید لوگ تو کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں جہاں چائے مل جائے، جہاں چائے مل جائے. ہاں وہ چائے بنی ہوتی ہے ہم تو کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو اس نشست کا آغاز کرتے ہیں. میں کوئی ایک آدھ چیز نظم سنا کے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک مختصر سی نظم ہے. دن ڈھلا آسماں اداس ہوا، دن ڈھلا آسماں اداس ہوا، روشنی دائروں میں بسنے لگی. دن ڈھلا آسماں اداس ہوا، روشنی دائروں میں بٹنے لگی. ٹمٹماتی اداس چھاؤں میں رنگ بردوش باد نوحہ گر، ٹمٹماتی اداس چھاؤں میں رنگ بردوش باد نوحہ گر، ہجر کے سائے سائے چلنے. ایک آدھ کوئی نظم اور سنا دیتے ہیں آپ کو جو یاد آ گئی. نہیں جو نظم بالکل یاد آ گئی ہے وہی سنا دیتا ہوں. پرانی نظم ہے 9 برس، یہ منمن راشد صاحب کے میں نے کہی. یہ وہی لمحہ تو نہیں میں جسے وقت خوش فہم کے کنارے پر 9 برس قبل چھوڑایا. یہ وہی لمحہ تو نہیں میں جسے وقت خوش فہم کے کنارے پر 9 برس قبل چھوڑ آیا تھا. اے میری جان یہ 9 برس میں نے کیا کہوں کس طرح گزارے. اے میری جان یہ 9 برس میں نے کیا کہوں کس طرح گزارے ہیں. ابتدا میں نظمیں کہتا تھا، ابتدا میں نظمیں کہتا تھا، باب حیرت کے حاشیے میں انہیں ہجر کی رات درج کرتا تھا.
ابتدا میں میں نظمیں گئتا، باب حیرت کے حاشیے میں انہیں ہجر کی رات درج کرتا تھا، ہجر میں نیند بھی نہیں آتی، ہجر میں نیند بھی نہیں آتی، جاگتا اور ڈرتا رہتا تھا، ایک ایولا سا تھا سر کرتاس، تیری یادوں کا عکس تھا جس میں وصل کے رنگ بھرتا رہتا تھا، ایک خیولہ سا تھا سر کرتاس، تیری یادوں کا عکس تھا جس میں وصل کے رنگ بھرتا رہتا تھا، اے میرے غم یہ 9 برس میں نے تیری آغوش میں گزارے، اے میرے غم یہ 9 برس میں نے تیری آغوش میں گزارے ہیں، تیری آغوش تیرے پہلو میں ایک لمحہ دکھائی دیتا ہے، یہ وہی لمحہ تو نہیں میں جسے وقت خوش فہم کے کنارے پر 9 برس قبل چھوڑ، بڑی نوازش مرزا صاحب جو ہیں وہ کیونکہ انہیں آج جانا ہے، جاب پہ جلدی پہنچنا ہے۔ مرزا صاحب کا تعارف آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت سینئر رائٹر ہیں اور 50 سے، اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ تخلیقی سفر کا آغاز کیا، وہ خاکے لکھتے تھے، پھر اخبار نویس رہے، اب تو بطور براڈ کاسٹر کی کام کر رہے ہیں اور خوب نام کما رہے ہیں، بہت اچھا مزاح لکھتے ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، دیسی لائف ان کینیڈا سے انہوں نے پاپی تک اور پاپی تک جو ہے نا یہ آئے ہیں پانچوں سے گزر کر، ہاں جی پانچوں سے گزر کر، تو مرزا یاسین بیگ صاحب حضور مائک آپ کے حوالے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے عرض کیا تھا کہ تاریخ اور مقام ضرور بتایا جائے جب آپ شروع کریں، تو یہ 21 ستمبر 2023 تو میں اسی سے آغاز کر رہا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ شکیلہ رفیق صاحبہ نے اپنے 9 رتنوں میں مجھے بھی شمار کیا۔ تو آج ایک آپ کے لیے کچھ میں نے تھوڑا سا لکھا ہے، کچھ کتاب کا بھی حوالہ ہے، کچھ شخصیت کا بھی حوالہ ہے۔ سفر پی آئیے اور سفر میری آنکھوں کا۔ شکیلہ رفیق کی شاعری اتنے دنوں بعد کتابی شکل میں کیوں سامنے آئی، حیرت ہے۔ آپا برقعے کی قائل ہیں نہ بیجا شرم کی، پھر اپنی شاعری کو کیوں ادھر ادھر چھپا کر رکھا، حالانکہ ان کی شاعری خوبصورت ہے، بے باک ہے، نسوانی شعور رکھتی ہے اور معاشرتی تجربات کو بھی جھیلنا اور جھلنا جانتی ہے۔ آپا نے اپنی شاعری پر بھروسہ دیر سے کیا، ورنہ وہ اب تک سینکڑوں مشاعرے اور دل لوٹ چکی ہوتی۔ کئی شاعرات حسرت اور کئی آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتی، کئی شاعر ہم رکابی کی دوڑ میں ہوتے، یعنی تقریبات میں شکیلہ جی کے لیے رکابی لیے چلے آ رہے ہوتے۔ انہیں شاید اپنے افسانوں اور ناولوں سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ وہاں شہرت کے ساتھ ساتھ پیمنٹ بھی ملتی۔ ویسے بھی افسانوں اور ناولوں کے نقاد کم شفاف اور کم بے رحم ہوتی ہیں، افسانوں کے قاری بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر آپا کو خیال آیا کہ ان کے ذہنی کوکھ میں شاعری بھی پڑ رہی ہے اور جوان ہو چکی ہے، چنانچہ آپا کا مجموعہ کلام بھی آ گیا۔ پتا چلا کہ وہ نہ صرف پی آئی اے سے بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی سفر کرتی تھی۔ نظموں نے بتایا کہ ان کی اپنی ذات کے خول میں فنکارہ بھی چھپی ہے۔ آپ کی نظم کا عنوان فرقت کے پھول بھی ہیں، تنہائی بھی ہے، جانا پہچانا دکھ بھی ہے، اور تو اور مشاعرے اور کوششیں ناتمام بھی۔
یہ تمام ان کی نظموں کے عنوانات ہیں. ان کے ہاں الفاظ و جذبات کا بے ساختہ بہاؤ ہے اور خلوت پسند رومانی شخصیت ہے. کہتی ہیں سب ہی شاداں یہاں مجھی سے ہیں، میں یہ چاہوں کہ گلا کرے کوئی. آپا فکر نہ کرے ہم ہیں. ایک جگہ سب ہی شاداں یہاں مجھی سے ہیں، میں یہ چاہوں کہ گلا کرے کوئی. میں یہ چاہوں گلا کرے. آپا فکر نہ کرے ہم ہیں نا. ایک جگہ کہتی ہیں میرا رستہ نہیں روکیں گے دریا، مجھے پانی میں چلنا آ گیا ہے. یقیناً یہ شعر شکیلہ رفیق نے کینیڈا پہنچنے سے پہلے لکھا تھا. اگر کینیڈا پہنچ کر لکھتی تو کچھ نہیں ہوتا. میرا رستہ نہیں روکیں گے آبشار، مجھے برف پہ چلنا آ گیا ہے. شکیلہ رفیق کی پہلی عادت چونکانا ہے، چاہے شعر کہہ کر ہو یا چاہے بات کر کے. ان کی تصاویر کا البم دیکھو تو محسوس ہوتا ہے کہ ہر ادیب و شاعر ان کے ساتھ تصاویر کھنچوا کر فخر محسوس کرتا ہے. آپا شکیلہ نے اردو ادب کی اتنی مجالس اٹینڈ کی ہیں جتنی کہ ہم نے یونیورسٹی کی کلاسیں بھی نہیں. جہاں سے کسی کو کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی وہیں سے انہیں کہانی مل جاتی ہے، بلکہ اب نظمیں بھی. شکیلہ رفیق کو آپا بنانے کے لیے مجھے جو پاپڑ بیلنے پڑے، ایسی کہانی کسی بھی منہ بولے بھائی کے پاس نہ ہو. شکیلہ رفیق کو آپا بنانے، دوبارہ بولیے، کب تک آپ آپا ہے؟ اب تلنا شروع کر دیں. شکیلہ رفیق کو آپا بنانے کے لیے مجھے جو پاپڑ بیلنے پڑے، ایسی کہانی کسی بھی منہ بولے بھائی کے پاس نہ ہوگی. اور پھر اسے ہم دونوں اب تک جس گرم جوشی اور گرم گفتاری سے نبھا رہے ہیں، اس سے کینیڈا کی سردی کم کم محسوس ہوتی ہے. شکیلہ رفیق نے دنیا کا کوئی ہوائی اڈا اور پاک و ہند کی کوئی ایسی ادبی شخصیت باقی نہیں چھوڑی جن سے میل ملاقات اور ادبی ٹاکرے نہ کیے. تصاویر کے اتنے البم ہیں کہ لگتا ہے کہ آپا ہمیشہ اپنے ساتھ ایک فوٹوگرافر لے کر چلتے. جب اپنا مجموعہ کلام سفر میری آنکھوں کا مجھے دیا تھا تو اس پر لکھا تھا یاسین بیگ میرا انتہائی پسندیدہ جو اس شہر کا سب سے بڑا مزاح نگار ہے. اور اس کے بعد کبھی کسی دن بلکہ ایک شام ڈانٹا تو ایسا لگا کہ سفر میری آنکھوں کا اب صفر میری آنکھوں کا ہو گیا. خوبی یہ ہے کہ ڈانٹ دیتی ہیں مگر اپنی محبت میں سے منہا نہیں کرتی. جب بہت دن ہو جائیں تو آواز دے دیتی ہیں، بس اب تک عید ہی نہیں دی. آج بلایا تو لگا دن پھر گئے. اس شام کا نشہ ان کی نظموں جیسا محسوس ہو رہا ہے. بہت دنوں تک کھلا کھلا رہوں گا تا وقتے کے اگلی بار ڈانٹ اور ناہید کے ہاتھ کی بنی ڈشز نہ کھائی. میرے آنگن میں اندھیارا بہت ہے، میرے آنگن میں اندھیارا بہت ہے، ذرا بجھتے دیے کی لو بڑھا. میرے آنگن میں اندھیارا بہت ہے، ذرا بجھتے دیے کی لو بڑھا دے. آج ہم سب لو بڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور شمع شکیلہ رفیق کے آگے رکھی. بات کو آگے بڑھاتے اس سے پہلے کہ میں کاظمی صاحب کو زحمت دوں، وہ مجھے واقعہ ایک یاد آ گیا. جوش مجید آبادی صاحب کا، وہ ایک جگہ پہ صدارت فرما رہے تھے اور پڑھ چکے تھے. تو ایک شاعر جو ہے وہ داخل ہوئے، وہ مشاعرہ کار، تو جو نظامت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ شاعر تشریف لا چکے ہیں، ہم کیا کریں. تو وہ اس نے کہا، پھر نوجوان شاعر نے کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا، میں کیسے جوش صاحب کے بعد پڑھ سکتا ہوں. تو جوش صاحب کہنے لگے کہ برخوردار اگر میرے بعد پیدا ہو سکتے ہو تو پڑھ دوں.
आज हम जो तकदीम व ताखीर है वो उस पे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये आज की महफिल जो है वो ये तो बिल्कुल एक है वो मुख्तलिफ किस्म की महफिल है, तो हमें इसमें वो नहीं करना है। तो मैं जनाब काज़मी साहब जो हैं ये शेर व अदब से तो वाबस्ता हैं, लेकिन अब अदब की जो तरवीज व इशात है उसमें शामिल हो गए हैं सिकंदर साहब के साथ, जुनैद साहब के और फैसल के साथ, और इन्होंने ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये एक फोरम है अब शहर में जो कि बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है। और फिर ये एक खूबी ये भी है इस फोरम की कि अगर इनके फोरम पे जाया जाए तो कोई खौफ महसूस नहीं होता। शरीफ से लोग हो गए पैदे से लोग हैं और मोहब्बत का इजहार करनी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सच्ची लगन के साथ जो है ना एक अदब का जो ये सिलसिला है ये इन्होंने शुरू कर रखा है, तो काज़मी साहब इसी सिलसिले की कड़ी है। जी किबला। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज जो नज़्म एक नज़्म मैं पेश कर रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि जो खुलूस नाहिद ने आपको दिया है मोहब्बत प्यार खैर, तो इस नज़्म का उन्वान है बेटी, और ये तमाम बेटियों की तरफ से माँ के लिए है, आपके लिए है। जोर से नज़्म बेटी पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। अच्छा, एक बात मैं कहता चलूँ कि मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, एक ही बेटा है मेरा, लेकिन ये तमाम बेटियों के एहसासात को देखते हुए ये नज़्म मैंने लिखी है। इस नज़्म में दो अल्फाज हिंदी के भी आएंगे, तो मैं पहले बता दूं उसके माने। एक लफ्ज़ है भावना, जो क्या ये भावना जो है इसका एक मान है इमेजिनेशन, तसव्वुर, ख्याल भी है। और दूसरा लफ्ज़ है शांत, मैं खाली इसको इससे वाकिफ है, ठहरा हुआ पुरसुकून। मैं एक चिड़िया हूँ भोली भाली सी, नर्म नाजुक सी, मैं आरज़ू के हसीन रेशम से अपनी आंखों में ख्वाब बुनकर खुली फिजाओं में उड़ रही हूँ। मैं आरज़ू के हसीन रेशम से अपनी आंखों में ख्वाब बुनकर खुली फिजाओं में उड़ रही हूँ। उड़ान की शांत भावनाओं के बीच ये मन बहुत सुखी है। ये फूल पत्ते, ये वादियां, ये पहाड़, दरिया और ये फजाएं, हर एक से मेरी दोस्ती है। मैं वो परी हूँ जो आंख नीचे धनक के पर्दों से झांकती है, हर एक से प्यार मांगती है। मैं वो परी हूँ जो आंख नीचे धनक के पर्दों से झांकती है, हर एक से प्यार मांगती है। मैं तितलियों की निगाह में हूँ, मैं चांद तारों की राह में हूँ, मैं अपने प्यारों की दुआओं की खूबसूरत पनाह में हूँ। मैं तितलियों की निगाह में हूँ, मैं चांद तारों की राह में हूँ, मैं अपने प्यारों की दुआओं की खूबसूरत पनाह में हूँ। इन्हीं धड़कते हुए दिलों की मैं एक पाकीज़ा चाह में हूँ। एक वलवला मेरी जात में है, एक हौसला मेरी जान में है, बड़ा मजा इस उड़ान में है, बड़ी कशिश आसमान में है, निगाह की सरहदों से आगे का रास्ता भी ध्यान में है। एक वलवला मेरी जात में है, एक हौसला मेरी जान में है, बड़ा मजा इस उड़ान में है, बड़ी कशिश आसमान में है, निगाह की सरहदों से आगे का रास्ता भी ध्यान में है। मैं एक चिड़िया हूँ फिर भी यारों, मैं अपने नन्हे से बाजुओं में हजारों खुशियों के जाम लाई,
अकीदतों का सलाम लाई, मोहब्बतों का प्याम लाई, तमाम लोगों के नाम लाई। मैं एक चिड़िया हूँ फिर भी यारो, मैं अपने नन्हे से बाजुओं में हजारों खुशियों के जाम लाई, अकीदतों का सलाम लाई, मोहब्बतों का प्याम लाई, तमाम लोगों के नाम लाई। उठो उठो खुशी के दिए जलाओ, खुली सजाओं में मुस्कुराओ। बहुत खूब, क्या कहें। एक और पढ़िए, ये अपना मुशायरा तो भी है। आप दो पढ़ सकते हैं। एक गजल है लेकिन गजल मालूम नहीं। न जाने बात ये अच्छी है या बुरी साहब, न जाने बात ये अच्छी है या बुरी साहब, कभी भी आपसे अपनी नहीं बनी साहब, कभी भी आपसे अपनी नहीं बनी साहब। हवाए शहर ये कहती है आप जैसों से, न दोस्ती है भली और न दुश्मनी साहब, न दोस्ती है भली और न दुश्मनी साहब। सयाह रात का आंचल दबा के दांतों में सिसक रही है चरागों की रोशनी साहब, सयाह रात का आंचल दबा के दांतों में सिसक रही है चरागों की रोशनी साहब। और भले से आप हमें जानवर समझते रहे, भले से आप हमें जानवर समझते रहे, दुआ है आप ही बन जाएं आदमी साहब। भले से आप हमें जानवर समझते रहे, दुआ है आप ही बन जाएं आदमी साहब। बदन तो पिस गया जुल्मो सितम की चक्की में, बदन तो पिस गया जुल्मो सितम की चक्की में, ज़मीर जिंदा है गैरत नहीं मरी साहब। बदन तो पिस गया जुल्मो सितम की चक्की में, ज़मीर जिंदा है गैरत नहीं मरी साहब। ये माना आप शहंशाह वक्त हैं लेकिन, ये माना आप शहंशाह वक्त हैं लेकिन, फकीर शहर को किस बात की कमी साहब। न जाने बात ये अच्छी है या बुरी साहब, कभी भी आपसे अपनी नहीं बनी साहब। वो जुनैद ने माइक पकड़ लिया लेकिन जुनैद जो है जी ये बहुत बाकमाल शायर है, और एक जमाने में वो सिर्फ मज़ाक लिखते थे और वो शिकारिया शायरी थी। अब तो बाकायदा जो है ना वो सिलसिला जो है वो एक है, और बहुत ही तवाना और बहुत ही वो है ये शायर। और हमारे अरबी मंजरनामे में ये एक बहुत ही खूबसूरत इजाफा है। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपको इतने दिन के बाद देखने पर। मैं खुद एतराफ कर रहा हूँ कोविड में जहाँ और इतने वो जुल्म ढाए, उसमें एक ये भी रहा कि ऐसा सिलसिला मुनक़ता हुआ कि फिर ना कोई मुलाकात रही ना कोई वो रहा। लेकिन चले दोबारा इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं पिछले दिनों पाकिस्तान गया हुआ था, तो मैंने कराची से लेके पिंडी तक ट्रेन से सफर किया, बच्चों को भी लेके गया दिखाने के लिए उनको। तो वहां वो खेत देख रहा था तो मुझे रह रहे के फैज का वो शेर याद आ रहा था, सबने सुना हुआ होगा कि ये हंसी खेत फटा पड़ता है जो बन जिनका। तो उससे इस्तेफादा करके 4 लाइनें लिखी हैं, देखिएगा कि ये हंसी खेत मियाँ देख के जोबन जिनका, ये हंसी खेत मियाँ देख के जोबन जिनका, हर दिले फैज में एक हूक उठा करती है, हर दिले फैज में एक हूक उठा करती है। खान साहब ने मगर खुल के बताया हमको, किस लिए इनमें फकत भूख उगा करती है।
اس لیے ان میں فقط بو کا کرتی ہے. اور اسی حوالے سے 4 لائنیں اور ہو گئی جی. اس کا عنوان ہے خان صاحب 804 خان صاحب. کیونکہ ان سے پہلے تو بات اتنی کھلی نہیں، حالانکہ ہوئی بہت، لیکن اس کا عنوان ہے عزت. کہ آپ چاہیں تو مل بھی سکتی ہے، آپ چاہیں تو مل بھی سکتی ہے، دبدبا آپ کا تو گھر گھر ہے. آپ چاہیں تو مل بھی سکتی ہے، دبدبا آپ کا تو گھر گھر ہے. مانگے تانگے سے دھوس دھمکی سے، ایسی عزت سے موت بہتر ہے. مانگے تانگے سے دوست دھمکی. کیا اچھا مصرع، کیا رواں مصرع. واہ، بہت اچھا. اور یہ بالکل تازہ غزل نا. یہ نہ دیکھو کس کو ملتا کس لیے انعام ہے، یہ نہ دیکھو کس کو ملتا کس لیے انعام ہے، تم تو وہ کرتے رہو بس جو تمہارا کام ہے. یہ نہ دیکھو کس کو ملتا کس لیے انعام ہے، تم تو وہ کرتے رہو بس جو تمہارا کام ہے. اور کم سے کم مرنے سے پہلے یہ، کم سے کم تم اے اسیروں یہ تو کر لو اعتراف، کم سے کم تم اے اسیروں یہ تو کر لو اعتراف، ہم نے تم کو یہ بتایا تھا یہاں پر دام ہے، ہم نے تم کو یہ بتایا تھا یہاں پر دام ہے. اور ستر پوشی کی ضرورت پڑ گئی ہے اب ہمیں، ستر پوشی کی ضرورت پڑ گئی ہے اب ہمیں، ایک دھاگا بھی ہمیں اب چادر احرام ہے. ایک دھاگا بھی ہمیں اب چادر احرام ہے. اور شعر دیکھیے کہ ایک سی حالت میں ہے یہ سب کے سب با اختیار، ایک سی حالت میں ہے یہ سب کے سب با اختیار، یہ ہمارا ملک بھی شاید کوئی حمام ہے، یہ ہمارا ملک بھی شاید کوئی حمام ہے. اور دوسرا مصرع ہمارے دور کی تفسیر ہے، دوسرا مصرع ہمارے دور کی تفسیر ہے، نیک نامی سے ہے بہتر آدمی بدنام ہے، نیک نامی سے ہے بہتر آدمی بدنام ہے. پہلا مصرع کیا عمدہ لگایا. دوسرا مصرع ہمارے دور کی تفسیر ہے، نیک نامی سے ہے بہتر آدمی بدنام ہے. اور ہم سے کوئی کہہ رہا تھا ہاں کیا کہیں اب آپ سے ہم اس گلی میں آئے کیوں، کیا کہیں اب آپ سے ہم اس گلی میں آئے کیوں، ہم سے کوئی کہہ رہا تھا آپ کو کچھ کام ہے. کیا کہیں اب آپ سے ہم اس گلی میں آئے کیوں، ہم سے کوئی کہہ رہا تھا آپ کو کچھ کام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اختر مل گیا تاروں کے ساتھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اختر مل گیا تاروں کے ساتھ، یہ ہمارے نام پر کتنا بڑا الزام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اختر مل گیا تاروں کے ساتھ، یہ ہمارے نام پر کتنا بڑا الزام ہے. یہ نہ دیکھو کس کو ملتا کس لیے انعام ہے، تم تو وہ کرتے رہو بس جو تمہارا کام ہے. کیا کہنے. سکندر صاحب، سکندر ابو الخیر پیشے کے اعتبار سے تو یہ انجینئر ہیں، لیکن یہ جب شاعری کے میدان میں آئے اور انہوں نے شعر کہنا شروع کیے تو میں جس چیز سے بے تحاشا متاثر ہوا وہ کیا، ان کا رویہ انتہائی طالب علمانہ. یہ سوال جو ہے وہ ایک طالب علمانہ جس کے ساتھ پوچھتے ہیں اور اس کا جواب سن کر جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس پہ عمل کروں گا، یا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے نہیں ہے بس میں. لیکن ہنر ایسا آیا کہ انہوں نے ایسی وہ ایک طالب علمانہ محنت کی کہ یہ نہ صرف بہت عمدہ غزل کہنے لگے بلکہ اب نظم بھی بہت عمدہ کہتے ہیں. اور کچھ تجربات بھی کیے، میرا اور ان کا نثر نظم پہ مکالمہ بھی ہوا، انہوں نے مجھے کچھ نظمیں سنائی بھی. تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی شاعر ادیب جب وہ شعر کہتا ہے تو وہ اس فن کو جو سیکھنے کا جو ہے اس میں وہ اس میں خواہش نہیں. تو یہ بہت ہی عمدہ شعر کہہ رہے ہیں اور انتہائی خاموشی سے کام کر رہے ہیں. آج اس نشست میں موجود ہے تو مائک حضور اب آپ کے ہاتھ میں.
ایک چیز اور آپ شاید رہ گئی کہ اپنا میں وہ کیا کہتے ہیں ہائی کو جی ہائی کو بہت اچھی بہت اچھی ہے بہت دل سے آ رہی لیکن ایک بڑی اچھی لکھ رہے تھے اور ماشاء اللہ سے زبردست. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں واقعی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں جتنا کچھ آپ لوگوں نے بتا دیا میرے بارے میں. اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا آپ کا گناہ ہے. سلامت رہیے سلامت. ایک نظم سامنے آ گئی ہے تو یہی سنا دیتا ہوں. ہالوین پہ ہے. کبھی دل کی حویلی خوشنما تھی، کبھی دل کی حویلی خوشنما تھی، جہاں رونق ہوا کرتی تھی ہر دم. مگر جب وقت کی زہریلی بیلیں چڑھی پروان تو یہ میں نے جانا کہ اس میں بسنے والے جا چکے ہیں. سو ہے تاریخ میرے دل کا مسکن، یہاں چوکھٹ بھی لگتی ہے بھیانک. کوئی تزئین ہالووین جیسی، کوئی جلتا دیا بجھتی خلش کا. مجھے خواہش یہ اب ہونے لگی ہے کوئی آہٹ کہیں قدموں کی آئے، کوئی در پر لگی کنڈی لائے. بنا کر بھیس شہزادے کا یا پھر کوئی صورت بنا کر جل پری کی میری دہلیز پر جو چل کے آئے. اگرچہ دل میرا وحشت زدہ ہے، اثر آصف کا اس پر نہیں ہے. میں کیا جانوں کہ ہالووین کیا ہے، مگر امید سے کچھ جاگتی ہے کہ آئے گا میرے در پر بھی کوئی. میں سوچوں آنے والوں کو میں کیا دوں، اداسی مرتبانوں میں بھری ہے. میں سوچوں آنے والوں کو میں کیا دوں، اداسی مرتبانوں میں بھری ہے. کئی پھیلے ادھورے خواب کے ہیں، رکھے ہیں ٹوکرے ناکامیوں کے. ندامت منہ چھپا کر جھانکتی ہے. نہیں دینے کو میرے پاس، انہیں دینے کو میرے پاس کیا ہے. وہ شوخی سے بھری نظریں اٹھا کر کوئی معصوم سی خواہش کریں گے کہ یہ ہے شام ہالووین جیسی. ذرا ٹھہرو مجھے کچھ سوچنے دو، یہاں امید کے دامن میں کچھ ہے جو برسوں سے یہاں رکھا ہوا ہے جو وعدوں کی پنی میں لپیٹی سہانے خواب کی کچھ ٹافیاں ہیں. مٹھائی ہے بڑے ارمان بھری وہ ورق چاندی کے جو اوڑھے ہوئے ہے ڈھارس کے یہ کچھ کھارے سے قتلے تسلی کے جو روغن میں تلے ہیں. ہے ان میں مدت میعاد باقی، یہ تحفے کیا رہیں گے ان کو کافی. مجھے امید ہے آئے گا کوئی، ہے ویران شام ہالووین جیسی. میں ایسی یاس کی منزل پہ ہوں اب، مجھے شام خزاں کی آرزو ہے. میری وحشت زدہ دل کی حویلی بڑی مدت سے جس کی منتظر ہے. بہت اچھا. کیا رنگ دیا ہے زبردست. کیا کہنے جی کیا کہنے. مدت میعاد میری سنا دیں. میرا چل رہا ہے. میں اپنا فون دے دیتا اسے اپنی سمجھ کے پڑھتے. یہ پاکستان کے حالات کے تناظر میں لکھی گئی ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے. دھواں بے چارگی کا چھا رہا ہے، اندھیرا بے بسی بھڑکا رہا ہے. دھواں بے چارگی کا چھا رہا ہے، اندھیرا بے بسی بھڑکا رہا ہے. کوئی افریت ہے پنہاں کہیں پر، تجسس خوف بنتا جا رہا ہے. ہے ایک انجان رستے پر کہانی، خیال مرکزی تڑپا رہا ہے.
وہ ہیرو یا ویلن ہے کون جانے، ہر ایک اوسان پر جو چھا رہا ہے۔ وسیع القلب تھا ایک کینوس جو تسلسل سے سمٹتا جا رہا ہے۔ کوئی گلشن کا میرے حال دیکھے، کلیجہ ہائے منہ کو آ رہا ہے۔ کوئی منظر نہیں لائق یقین کے، پس منظر ہے جو دھڑکا رہا ہے۔ مگر جو لکھ رہا ہے وہی جانے کہ کب راحت کا وقفہ آ رہا ہے۔ نہیں ہے خیر کو آگاہی کل کی، وہی جانے جو لکھتا جا رہا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھی، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ جی فیصل عظیم کا کیا تعارف کرایا جائے جی؟ یہ کیمرہ مین ہے جی۔ اصل میں یہ جو نامور لوگوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک لیگیسی تو کیری کر رہے ہیں، لیکن جب بھی وہ کوئی اگر کوئی اپنی تخلیق یا کچھ بھی پیش کریں تو ان کے والد جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والد یا والدہ زیادہ، کیونکہ اس کے والد جو ہے وہ بہت معروف شاعر ہے شبنم رومانی صاحب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل کی یہ خوبی ہے کہ وہ نہ صرف اس نے انتہائی خوبصورتی سے اس لیگیسی کو کیری کیا، بلکہ الگ ایک اپنی الگ سے ایک شناخت جو ہے، شعری شناخت، وہ بنانے میں کامیاب ہوا۔ اور یہ نہیں، اس نے اپنی الگ شعری شناخت بنائی ہے۔ میں یہ بہت ہی مشکل کام ہے فن شاعری میں کہ آپ صاحب اسلوب شاعر ہو، تو زیادہ تر تو وہ لوگ بازگشتی سنائی دیتی ہے ہمیں عام جو روش ہے۔ تو فیصل بہت باکمال شاعر ہے، اور اب مائک جو ہے وہ فیصل کے پاس ہے۔ بہت شکریہ محمد لوگوں تو عبادت کے سب سے پہلے تو شکیر رفیع صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اہتمام کیا، زحمت کی، اور اتنے عرصے سے ہو رہا تھا کہ اب ملنا ہے، آج ملنا ہے، کل ملنا ہے، اگلے مہینے ملیں گے کہ اگلے ہفتے ملیں گے، تم آتے نہیں ہو تم صرف کہتے ہو، اس کے بعد تو تم مجھے بھول جاتے ہو تم جو ہے تمہیں یاد نہیں رہتا کہ میں بیمار ہوں تو ایسا نہیں، آپ کو نہیں بھولتے، یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں بھولتا، میں بھی آپ کو نہیں بھولتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ کچھ ناراضگی ہے، وہ ہے تو اس کا وہ مجبوری ہے، وہ اس کا بہت علاج کیا لیکن وہ نہیں جاتی۔ ہم نہیں بولتے، انشاءاللہ یہ ثابت کرنے کے لیے آپ سے کراچی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ ملیر کینٹ تو ہمارا علاقہ ہے۔ اور یہ بھی کہ ہم نے، بلکہ میں کہہ ہی دیتا ہوں، میں آپ بجائے اس کے پروگرام کے بعد آپ مجھ سے دوبارہ کہیں، میں آپ سے یہی کہہ دیتا ہوں کہ ہم نے شکیر رفیق صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا، اس میں ہمیں کرنا تو چاہیے تھا کہ ان کا اتنا کام ہے تو ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے پورا ایک پروگرام کرتے، اس میں ان کے تمام ان کا جو کام ہے اس کے بارے میں بات کرتے، سب کا احاطہ کرتے، اور ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ اپنے ہمارے جتنے بزرگ ہیں ان کے ساتھ ایسا کچھ کریں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگوں نے وہ جو محفل، ہماری محفل مکالمے کی محفل ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے موضوع کے حوالے سے بات کریں اس میں لوگ شریک ہوں، تو ہم لوگوں کو سیکھنے کو بھی مل جائے، ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے، ہمارے پاس سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب مل جائے۔ تو ہم نے جو محفل کی اس کا ہم نے عنوان رکھ دیا افسانے، شکیر رفیق صاحبہ کے افسانے۔ تو اس میں افسانوں پہ تو بات ہو گئی شکیر رفیق صاحبہ کی، اس کے علاوہ ہم کا جو دوسرا کام ہے، انٹرویوز کیے ہیں، اس وقت آپ پوری کتاب موجود ہے ان کے انٹرویو کی، ان کی شاعری ہے، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکے، تو ان کا خیال ہے کہ شاید میں جو ہوں ان کی شاعری پڑھتا نہیں ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے، چونکہ ہم لوگوں کا وہ پروگرام کچھ اس نوعیت کا تھا کہ ہم اس سے بات نہیں کر سکے، مجھے خود افسوس ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا پھر کریں گے، آپ کی شاعری کی بھی بات کریں گے۔ اور اس وقت تو بالکل میرے خیال میں چند شروع کے پروگراموں میں سے آپ کا پروگرام ہے، اس وقت ہم لوگوں کو اتنا خود بھی نہیں آتا تھا پروگرام کرنا، وہ کووڈ زیادہ پروگرام کا زوم کرتا رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ لوگ بھی نہیں آ سکے، وہ پروگرام ہمیں چھوٹا رکھنا تھا کیونکہ آن لائن لوگ زیادہ دیر بیٹھتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم اپنی شاعری پہ بھی محفل کریں گے کوئی نہ کوئی۔ تو اجازت غزل کی چند اشعار۔ اتنے سناٹے میں کوئی اپنا بھی کردار ہے کیا، اتنے سناٹے میں کوئی اپنا بھی کردار ہے کیا، کچھ تو بولو سائیں، یا خاموشی کی تکرار ہے کیا،
इतने सन्नाटे में कोई अपना भी किरदार है क्या? कुछ तो बोलो साईं, ये खामोशी की तकरार है क्या? और मैं तो कब से ढूंढ रहा हूं तुझको तेरी बातों में, मैं तो कब से ढूंढ रहा हूं तुझको तेरी बातों में, यार तू पूरे अफसाने में एक फर्जी किरदार है क्या? मैं तो कब से ढूंढ रहा हूं तुझको तेरी बातों में, यार तो पूरे अफसाने में एक फर्जी किरदार है क्या? खामोशी और इतनी गहरी खामोशी है दूर तलक, खामोशी और इतनी गहरी खामोशी है दूर तलक, कब से चीख रहा हूं कोई बस्ती में बेदार है क्या? खामोशी और इतनी गहरी खामोशी है दूर तलक, कब से चीख रहा हूं कोई बस्ती में बेदार है क्या? देख यार समाज के पर्दे से फिर आवाज में झांका है, यार समाज के पर्दे से फिर आवाज में झांका है, मरने वाला मर जाएगा देख पूछो तो आजाद है क्या? यार समाज के पर्दे से फिर आवाज में झांका है, मरने वाला मर जाएगा देखो तो आजाद है क्या? और मेरी छोड़ उदासी मेरी फितरत में है जाने मन, मेरी छोड़ उदासी मेरी फितरत में है जाने मन, तू क्यों नशा तोड़ रहा है तेरे दिल पर बार है क्या? समाने के बाद जाने मन बांधे मेरी छोड़ उदासी मेरी फितरत में है जाने मन, तू क्यों नशा तोड़ रहा है तेरे दिल पर बार है क्या? बहुत शुक्रिया। और एक नज्म, अभी कपड़ों पे धज्जियों की बात हो रही थी, तो नज्म है, नज्म है, उसका उन्वान है नंगों का बादशाह। नज़्मों का बादशाह, नंगों का बादशाह, बादशाह नंगा है, नंगों का बादशाह। अच्छा, तो हमेशा ही नंगे होते थे, लोगों को नजर नहीं आते यार। बादशाह खुश भी है मुस्तरिब भी, बादशाह खुश भी है मुस्तरिब भी, और सचमुच में तारीफें करती रियाया का जम्मे गफीर, अपने अपने लिबासों पे नाज़ां सभी। पर वजीर उनकी आंखों को फुर्सत के लम्हों से कब तक बचाएं, बादशाह बस रियाया की नजरें न हटने दे अपने बदन से कभी। और वो बच्चे जो हैरत से अपने बड़ों को, वजीरों को और बादशाह को नंगा नंगा करे जा रहे हैं, कुछ उनका करो, कैसे उनकी जबानों पे पर्दे चढ़े, वरना पर्दे का तो दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं। मुझे अभी जैसे फैसल ने कहा कि एक अलग से प्रोग्राम होगा शकीला रफीक साहबा, शकीला रफीक साहबा के साथ प्रोग्राम होगा एक अलग से, ये होना चाहिए। एक प्रोग्राम जो है वो शाहिद अख्तर साहब के साथ होना चाहिए। आप पूछे मैं सवाल ही कर सकता हूँ कि आप, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम जो है ये ट्रांसलेशन के हवाले से शाहिद अख्तर साहब के साथ होना चाहिए। अब मैं ये अब जो बात कहने लगा हूँ कि एक जमाने में जब कोई शागिर्द जाता था उस्ताद के पास कि जी मुझे शागिर्द बना लो, वो कहते थे जी आप क्या लिखते क्या है आप? उनका जी शेर कहता हूँ। अच्छा, वो जेब से कागज निकालते थे और कहते थे ये गजल है मेरे पास, तो आप ये देख लीजिए। वो कहते थे नहीं अपनी गजल मत सुनाइए, तो आपको जो अशार याद है वो सुनाइए ताकि हमें अंदाजा हो कि आपका शेरी ज़ौक़ कैसा है। बुनियादी बात ये। अच्छा, अब शाहिद अख्तर साहब जैसे बाज़ौक़ लोग जो है वो इस शहर में मौजूद हैं, और इस शहर की जो अदबी फिजा है,
اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹورانٹو جو جس طرح ایک زمانے میں لنڈن ہوتا تھا اب آج کل ٹورانٹو ہے، تو اس کی شعری فضا بنانے میں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے ان میں ایک شاہد اختر صاحب، یہ بنیادی بات ہے. انہوں نے بہت عمدہ ٹرانسلیشنز کی، یہ بہت عمدہ تنقید لکھتے ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کیونکہ یہ گوشہ گیر ہیں اور نجی محفلوں میں زیادہ ان کا وہ اسی طرح کی محفلوں میں یہ آتے ہیں اور بات بات ہو جاتی ہے. سینس آف ہیومر بہت باکمال ہے ان کا. تو میری یہ خواہش ہے کہ کیونکہ یہ باذوق آدمی، آج ہم ان سے کچھ سنیں جو یہ سنانا چاہے، ترجمہ کوئی بھی چیز، لیکن ایک نشست ٹرانسلیشنز کے حوالے سے ٹرانسلیشن کے آرٹ پہ شاہد اختر صاحب کے ساتھ کی جائے اور ان سے کچھ ترجمے. میں نے حال ہی میں مجھے اتفاق ہوا ہے، ایک کہانی انہوں نے سنائی، میں تو حیران رہ گیا. انتہائی عمدہ کہانی اور انتہائی خوبصورت ترجمہ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تبازات ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے کہانی. ارشاد کیجیے. بھائی اگر تو یہ کسی اور دن کا سیشن کی بات ہے تو کسی اور دن دیکھی جائے گی. آج آپ کچھ سنائیے، کچھ بھی چلیں ایک ٹرانسلیشن میں نے کیٹ شاپن کی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی ارشاد. یہ کہہ رہے نہیں سننا. مائک قریب جی جی میں پھر اب آواز شکاری آپ اب آواز آ رہی ہے نا؟ تو اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا معصوم. ارشاد. جی اجازت. ارشاد. دن نہایت خوشگوار تھا. مادام نے کوچوان کو بگھی تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ روشیل سے مل کر ابھی آئیں اور اس کے بیٹے کو بھی دیکھ لیں جو ابھی صرف چند مہینوں کا تھا. مادام کو یہ سوچ کر ہی ہنسی آ رہی تھی کہ روشیل جو کل تک خود بھی ایک ننھی سی بچی تھی آج ایک بیٹے کی ماں بنی بیٹھی ہے. یہ ہنسی ایک گہری سوچ میں بدل گئی جب مادام کو وہ دن یاد آیا جس دن صاحب کی بگھی بڑے پھاٹک سے حویلی میں داخل ہوئی اور ڈیوڑی کے پتھر کے بڑے سکون کے ساتھ لگی تقریباً 1.5 سال کی ایک بچی بالکل غافل سو رہی تھی. صاحب نے بچی کو جیسے ہی اٹھایا اس نے رونا شروع کر دیا اور صرف ایک ہی لفظ کی تکرار جاری رکھی، ماما ماما. مادام اور گھر کے سب نوکر چاکر بچی کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں کہ یہ کس کی بچی ہے، کون اسے چھوڑ گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے. کچھ کا خیال تھا کہ شاید ماں سے بچھڑ کر یہ بچی خود ہی رینگتی اور لڑکتی ہوئی یہاں تک آ گئی ہے. کچھ کہہ رہے تھے کہ ایسا ناممکن ہے. اکثر کی رائے تھی کہ خانہ بدوشوں کا ایک قافلہ جو دوپہر میں اس آبادی کے پاس سے گزرا تھا جان بوجھ کر اسے مادام کی حویلی کے باہر چھوڑ گیا ہے. ان تمام چہنے گوئیوں کے دوران مادام انتہائی پیار بھری نظروں سے بچی کو دیکھے جا رہی تھیں اور ان کے دل میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اسے ایک ایسی نعمت مل گئی ہے جس کو وہ مدت سے تلاش کر رہی تھی اور مایوس ہو چکی تھی کہ اب انہیں اپنی کوئی اولاد نصیب نہیں ہوگی جس پر وہ اپنی مانگ کا نچھاور کر سکیں. مزید تحقیق یا سوالات بے معنی تھے. مادام اور صاحب نے فوراً ہی بچی کو گود لینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر انتہائی لاڈ اور پیار سے اسے پالا. مادام نے بچی کا نام روشیل رکھا اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد بچی گھر کا حصہ ایسے بن گئی جیسے یہی پیدا ہوئی ہو. معصوم کہے گھر میں گونجنے لگے اور روشیل گھر والوں ہی کی نہیں سب آنے جانے والوں اور ملازموں کی آنکھوں کا تارا بن گئی. مادام یہ سوچ کر خود بخود مسکرا رہی تھی کہ اب وہی روشیل جو چھوٹے سے بچے کی ماں تھی، مادام اپنی بگھی میں
इन दोनों को मिलने जा रही थी। मादाम को याद आया कि इस वाक़े के 16 साल बाद एक दिन रोशल उसी सतून से लगी खड़ी थी जब साथ वाली नौआबादी के सबसे बड़े जमींदार के बेटे अरमांद ने उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाने का फैसला कर लिया था। हालांकि अरमांद को उसको बचपन से जानता था, लेकिन उस दिन न जाने क्या हुआ, उसे अचानक ऐसा लगा जैसे पहली बार अपनी बचपन की दोस्त को नहीं, एक नई इंतहाई पुरकश नौजवान औरत को देख रहा है जिसके बगैर वो अब जिंदगी तो क्या एक पल भी नहीं गुजार सकता। दोनों खानदान एक दूसरे को मुद्दत से जानते थे। अरमांद अरामिस पेरिस में पैदा हुआ था। बड़े अरामिस साहब की शादी भी इसी तरह आनन फानन हुई थी। उन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत लड़की को पहली मर्तबा देखा और फिर बगैर किसी मजीद तहकीक किए उससे शादी का फैसला कर लिया था। इन प्यार भरे जज्बात की शिद्दत का इजहार 9 माह के बाद अरमान की सूरत में बरामद हुआ। मादाम और साहब ने रोशेल के असल माँ बाप के बारे में लाइल्मी को मद्देनजर रखते हुए अरमान को एहतियात बरतने को कहा और नसीहत की कि जल्दी में फैसला नहीं करना चाहिए। खुदा जाने असलियत क्या निकल आए। उन्हें तो लड़की का आबाई नाम तक मालूम नहीं था, लेकिन अरमान प्यार का डसा हुआ था। उसका इरादा मुसम्मम था और उसकी नजर में इतनी खूबसूरत लड़की के बारे में किसी किस्म का सवाल उठाना वक्त जाया करने के मुतरादिफ था। और नाम में क्या रखा है? शादी के बाद वो अरामिस जैसे बड़े खानदानी नाम से जानी जाएगी और इससे बड़ा नाम रोशेल को क्या मिल सकता था। शादी निहायत धूमधाम से हुई। 1 साल के अंदर अंदर रोशेल और अरमांद के यहाँ एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। पैदाइश की खुशियां दूर दूर तक मनाई गई। मादाम की घोड़ा गाड़ी अब अरमांद की आबाई हवेली के करीब पहुंच चुकी थी। मादाम को पहले की तरह हवेली की खस्ता हालत देखकर अफसोस हुआ। बड़े अरामिस साहब शुरू से यहाँ अकेले ही रहते थे। उनकी बीवी का अरमांद के पैदा होने के चंद साल के बाद इंतकाल हो गया था और अरामिस साहब अरमांद को पेरिस से लुइजियाना ले आए थे। हवेली की जबूहाली को देखकर लगता था कि उसको औरत का जो सुर हाथ होना चाहिए वो नसीब नहीं हुआ। अरमांद की अपनी तबीयत लाउबाली सी थी। उसे सिवाय रोशेल के प्यार के और अपने कपास के खेतों के और किसी चीज से दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो कभी अपने घर की खस्ता हाली के बारे में सोचा ही नहीं था और रोशेल वो तो बस अरमांद के और अपने बेटे के प्यार में हर लम्हा गुजारना चाहती थी। उसे किसी और चीज से गरज नहीं थी। मादाम जब रोशेल के कमरे में पहुंची तो वो अपने नौमौलूद बच्चे को छाती के साथ लगाए बिस्तर पर लेटी थी। मादाम ने झुककर रोशेल को गले से लगाया और जैसे ही बच्चे पर नजर डाली तो चौंक कर पूछा, ये क्या हुआ उसको? ये इतना क्यों बदल गया है? सिर्फ 4 हफ्ते में, है ना? रोशेल ने हंसते हुए कहा, मुझे तो अम्मी ऐसा लगता है जैसे किसी ने दूध में चॉकलेट घोल दी हो। इसकी तो रंगत ही बदल गई है। कितना बड़ा हो गया है 1.5 महीने में। कल ही आया को उसके नाखून भी काटने पड़े। इतने बड़े हो गए थे ना, है ना आया? जी मिस, आया ने जवाब दिया, लेकिन उसने बादाम से आंखें नहीं मिलाई। और फिर जैसे ये रोता है इतनी जोर से कि कल अरमान ने गेट से बाहर इसके रोने की आवाज सुनी, लेकिन बादाम ने जैसे बात सुनी अनसुनी कर दी थी। वो मुसलसल बच्चे को देखे जा रही थी। फिर वो बच्चे को गोद में उठाकर उसे खिड़की के पास ले गई और खिड़की से आती हुई रोशनी में बच्चे का सर से पांव तक जायजा लिया और तजस्सुस भरी नजरों से आया को देखा, जो मादाम से नजरें चुराकर खिड़की से दूर कपास के भरी फसलों के खेतों की जानिब देख रही थी। हाँ, मादाम ने गहरी सोच में डूबी हुई आवाज में कहा, बच्चे में वाकई बहुत तब्दीली आई है। अरमान का इसके बारे में क्या ख्याल है? रोशेल का चेहरा फट मुसर्रत से चमक उठा। ओ अम्मी, जितना अरमान खुश है इससे ज्यादा तो दुनिया में और कोई खुश नहीं होगा। उसे इतना फख्र है कि उसके बेटे की वजह से अब उसका नाम जिंदा रहेगा। उसे अपने खानदानी नाम पर बहुत फख्र है अम्मी। हालांकि वो कहता है अगर मैं बच्ची को भी जन्म दे देती तब भी वो उसको इतना ही खुश होता, लेकिन मुझे पता है वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रहा है। उसे बेटा ही चाहिए था ताकि वो उसका नाम
अगली नस्लों तक बढ़ा सके। और हाँ अम्मी, उसने तो किसी नौकर को सजा भी नहीं दी जब से मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ है। हत्या कि जब एक नौकर ने बहाना किया कि उसकी टांग में चोट लग गई है और वो कपास नहीं चुन सकता, तो बजाय उसकी पिटाई करने के अरमान ने हंसकर बात टाल दी। और तमाम अफ्रीकी स्याह फाम नौकर ही नहीं, उनका सुपरवाइजर तक हैरान हो रहे थे कि अरमान साहब कितने रहमदिल हो गए हैं सिर्फ मेरे बेटे की वजह से। और अभी मैं इस कदर खुश हूं कि मुझे बाद दफा डर लगता है कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। क्या इतनी खुशी मुमकिन है? कहीं मैं ख्वाब से जाग तो नहीं जाऊंगी? कहीं मुझसे ये खुशी छीन तो नहीं जाएगी? रोशेल ठीक कह रही थी। अरमान में वाकई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई थी। इससे पहले वो नौकरों और खेतों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलामों के साथ इंतहाई सख्ती का बर्ताव करता, छोटी छोटी बातों पर चाबुक से पिटाई करता। ये उसका रोज का मामूल था। उसकी सख्त गिरी से रोशेल भी डरती थी, लेकिन जब से उसे अरमान का बेटा पैदा हुआ था उसकी पेशानी पर बल भी नहीं पड़ता। रोशेल को तो जैसे जन्नत मिल गई थी। इस वाकई के तकरीबन 6 हफ्ते के बाद जब बच्चा 3 महीने का हो गया था, एक दिन रोशेल को यूं एहसास हुआ जैसे कोई अजीब सी बात हो रही हो, जिससे उसको बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन बात थी क्या, सही पता नहीं चल रहा था। लगता था माहौल में कोई ऐसी पुरस्रार सी चीज आ गई है जो नजर नहीं आती थी, लेकिन अपनी मौजूदगी का शदीद एहसास दिला देती। फिर उसने लोगों को खुसर फुसर करते सुना। पिछले चंद दिन से ऐसे ऐसे लोगों ने घर में आना शुरू कर दिया था जो मुतवक्के नहीं थे, लेकिन वो तजस्सुस भरे अंदाज में उससे मिलने आते और बच्चे को बहुत गौर से देखते थे, मगर इस रात से पर्दा न उठाते जिसने रोशेल का सुकून बर्बाद करना शुरू कर दिया था। फिर अचानक उसके शौहर के रवैये में ऐसी कर्बनाक तब्दीली रूनुमा हुई जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन उसकी जुर्रत नहीं हुई कि वो पूछ सके कि आखिर वजह क्या है, उससे ऐसी क्या गलती हो गई है, उसने क्या कसूर किया है। अब अरमान उससे आंख मिलाकर बात नहीं करता था। उसकी नजरों में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, फासला दिखाई देता था। अब उसने घर आना भी कम कर दिया था, ज्यादा वक्त जमीनों पर गुजारता, और अगर घर आता भी तो रोशेल और बच्चे के पास आने से इज्तनाब करता। गुस्से के शैतान ने फिर उसकी तबीयत पर गलबा हासिल कर लिया था। उसकी सख्त गिरी वापस आ गई थी। नौकरों को हंटर से बासिफा इतना पीटता कि उनकी खाल उधड़ जाती। रोशेल बेपनाह दुखी थी। वो अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसके लिए ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर थी। एक दिन तपती दोपहर में वो अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि उसकी काया अचानक ऐसे क्यों पलट गई है। सोच सोचकर उसका दिमाग माउफ हो गया था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरमान मुझसे नफरत क्यों करने लगा है? उसकी कोई तो वजह होगी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके वसी कमरे के कोने में बच्चे के लिए निहायत खूबसूरत आबरूज का बना बिस्तर लगा था, जिस पर गर्मी की वजह से बच्चा तकरीबन नींद बरहना लेटा हुआ था। बिस्तर की पांति पर एक सियाह फाम अफ्रीकी मुलाजिमा का 2 नस्ली लड़का, जो शायद 5 या 6 साल का होगा, मोर के परों का बना हुआ पंखा झल रहा था। मुलाजिमा का ये लड़का भी नींद बरहना था। रोशेल बड़े गौर से इस लड़के को देख रही थी और फिर उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ी। उसने लड़के को फिर देखा, फिर अपने बच्चे को देखा, और फिर अचानक रोशेल की कर्बनाक चीख से पूरा घर गूंज उठा। लेकिन रोशेल को एहसास नहीं हुआ कि वो चीखी थी। उसकी रगों में खून जैसे बर्फ बन गया था। आया का लड़का घबराकर उसे देख रहा था। रोशेल ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज ने उसका साथ न दिया। वो सिर्फ कराह सकी और हाथ की उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। लड़के ने मोर के परों का पंखा फर्श पर रखा और उल्टे कदमों खामोशी से कमरे से निकल गया। रोशेल एक मुजस्समी की तरफ अपनी जगह पर बैठी रही। उसकी नजरें अपने बच्चे के नींद बरहना जिस्म पर थी। उसका चेहरा खौफ की तस्वीर लग रहा था। अरमान कमरे में दाखिल हुआ और बगैर बात किए मेज पर रखे हुए कागजों को देखने में मसरूफ हो गया। अरमान,
रोशेल ने ऐसी आवाज में उसे मुखातिब किया जो किसी भी इंसान का जिगर चीर सकती थी, लेकिन अरमान ने कोई तवज्जो नहीं दी, जैसे सुना ही नहीं। अरमान, उसने दोबारा कहा। फिर वो उठी, अपने शौहर की तरफ चंद कदम बढ़ी। अरमान, उसने फिर ऐसे कहा जैसे उसको दुनिया लुटने वाली हो। उसने अरमान का बाजू अपनी गिरफ्त में लिया और अरमान का रुख बच्चे के आबरू से बिस्तर की तरफ मोड़कर कहा, कांपती हुई आवाज में कहा, अरमान, हमारे बेटे की तरफ देखो, इसका मतलब क्या है? मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? अरमान ने इंतहाई सदमेहरी से रोशेल का हाथ अपने बाजू से अलग कर दिया। खुदा के लिए मुझे बताओ, ये सब है क्या? इसका मतलब क्या है? बताओ इसका मतलब। अरमान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि यह बच्चा सफेद नस्ल से नहीं है। इस इल्जाम की संजीदगी के एहसास ने उसमें एक नई जुर्रत पैदा कर दी थी। वो पूरी हिम्मत से इस इल्जाम की तरदीद करना चाहती थी। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। मैं सफेद फाम हूं, देखो, गौर से मेरा चेहरा देखो, मेरा जिस्म देखो, गौर से देखो, मेरे बाल सोने की तारों की तरह सुनहरे हैं या नहीं, मेरी आंखें नीली हैं या नहीं। उसने भी शौहर की कलाई पकड़कर अपने नजदीक करते हुए कहा, मेरी कलाई देखो, ये तुम्हारी कलाई से ज्यादा सफेद है। मैं सफेद फाम हूं अरमान, तुम्हारी तरह। उसने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। मेरा बेटा भी सफेद फाम है। हाँ, ऐसा सफेद फाम जैसे आया का दो नस्ली बेटा। अरमान की आवाज में शदीद हकारत टपक रही थी। उसे बच्चे के साथ अकेला छोड़कर वो कमरे से बाहर निकल गया। जब रोशेल की लड़जाहट में थोड़ी सी कमी हुई तो उसने कलम हाथ में लिया और मादाम को एक खत लिखना शुरू किया। अम्मी, लोग कहते हैं मैं सफेद नस्ल की नहीं। अरमान ने आज मुझसे कह दिया कि मैं सफेद फाम नहीं हूं। आपको खुदा का वास्ता मुझे बताएं कि ऐसा नहीं है। आपको तो मालूम होगा कि ऐसा नहीं है, वरना मैं मर जाऊंगी। अम्मी, मुझे मर ही जाना चाहिए। मैं इतने गम के साथ जिंदा नहीं रह सकती। मुझे बताएं अम्मी, सब कुछ सच सच बताएं। जो जवाब आया वो इंतहाई मुख्तसर था। मेरी अपनी प्यारी बेटी रोशेल, तुम फौरन अपनी माँ के पास वापस आ जाओ, जो तुमसे बेपनाह प्यार करती है, और अपने बेटे को भी साथ लेकर आओ। जैसे ही रोशेल को यह खत मिला, वो अपनी शौहर की लाइब्रेरी में गई, जहां वो मेज पर बिखरे हुए कागजात देख रहा था। रोशेल ने खत खोलकर मेज पर उसके सामने रख दिया। वो बिल्कुल चुप थी और पत्थर के बुत की तरह साकिन खड़ी रही। उसने खामोशी और सदमेहरी से खत पढ़ा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अरमान, क्या मैं चली जाऊं? उसने चुपती हुई और तजब्बुत से भरी आवाज में पूछा। जाओ, उसने एक लफ्ज में जवाब दिया। क्या तुम वाकई चाहते हो मैं चली जाऊं? हाँ, चली जाओ, मैं यही चाहता हूं। उसका दूसरा तफसीली मुख्तसर जवाब था। वो सोच रहा था कि खुदा ने उस पर बहुत जुल्म किया है और उसके साथ नाइंसाफी की है। वो खुदा से बदला लेना चाहता था और अपने इंतकाम का जहरीला खंजर अपनी बीवी की रूह में भोंक कर खुदा से अपना हिसाब चुकाना चाहता था। और फिर अब वो रोशेल से प्यार भी तो नहीं करता था, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे अपने नाम और अपनी आइंदा नस्ल से महरूम कर दिया था। रोशेल को ये जवाब सुनकर एक झटका सा लगा। एक दर्जन के करीब सियाह फाम गुलामों को घर के अंदर से अनवा व अक़साम की कीमती चीजों को बाहर लाने का हुक्म दे रहा था, जो उस आग का ईंधन बन रहे थे। बच्चे का आबरू सी बिस्तर, खिलौने, रोशेल के रेशमी गांव, चादरें, खिड़कियों के पर्दे और हर वो चीज जो उसे रोशेल या बच्चे की याद दिला सकती थी, भड़कती हुई आग में झोंकी जा रही थी। जब तमाम चीजें जल चुकी और आग बुझने के करीब थी, तो अरमान ने नौकरों को कमरे से आखिरी अलमारी लाने को कहा। अलमारी को आंख में झोंकने से पहले उसने एक दराज खोली, जिसकी तह में से रोशेल के लिखे हुए खत मिले। एक बंडल निकला, जिसको उसने बगैर देखे या पढ़े आग में डाल दिया। सब खत जल चुके थे। वो दराज को आग में फेंकने ही वाला था कि उसे एक अनखुला खत नजर आया, लेकिन ये खत रोशेल का नहीं था। ये एक बहुत पुराना गुमशुदा खत था। खत अरमान की मां की तरफ से था, आराम साहब के नाम, जिसमें उसने अरमान के वालिद को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था और खुदा का शुक्र अदा किया था कि उसे आरामिस जैसे नेक नाम
اور بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخص کی محبت ملی جس کی وہ ہرگز حقدار نہیں تھی. اور سب سے زیادہ تو میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، خط کی آخری سطروں میں لکھا تھا کہ اس کی کرامت سے ہمیں چاند سا بیٹا ارمان ملا جس میں میری ذرہ برابر بھی شباہت نہیں، جو بالکل مکمل طور پر آپ پر گیا ہے، جس کو کبھی یہ علم ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ماں افریقی سیاہ فام غلاموں کی اولاد تھی. آپ کچھ نہیں پوچھنا ہے؟ آپ کچھ کہنے اس میں سے کوئی مجھے بالکل آپ جیسے ہمارے لوگوں کو زبانی کچھ یاد نہیں ہے. بارے اچھا کتاب وہاں سے اپنی ہستی کو مٹانے کا خیال آتا ہے، اب تو اس پار ہی جانے کا خیال آتا ہے. اپنی ہستی کو مٹانے کا خیال آتا ہے، اب تو اس پار ہی جانے کا خیال آتا ہے. وہ میرا ہو کے رہے بات ہے یہ ناممکن، پھر مجھے کیوں اسے پانے کا خیال آتا ہے. میرا ہو کے رہے بات ہے یہ ناممکن، پھر مجھے کیوں اسے پانے کا خیال آتا ہے. یہ تمہارا پسندیدہ شعر ہے. جی میں آتا ہے حجابوں سے میں نکلوں لیکن کیا کروں مجھ کو زمانے کا خیال. جی میں آتا ہے حجابوں سے میں نکلوں لیکن کیا کروں مجھ کو زمانے کا خیال آتا ہے. دور ہے دور مگر مجھ سے وہ اٹھا تو نہیں جس کو دن رات منانے کا خیال آتا ہے. یہ کہتا ہے وہ میرا ہے مگر کیا کیجیے لوٹ کر اس کے نہ آنے کا خیال آتا ہے. یہ کہتا ہے وہ میرا ہے مگر کیا کیجیے لوٹ کر اس کے نہ آنے کا خیال آتا ہے. اور پھر شعر بھی پتہ نہیں اس کو خطاب میں نہیں کہتی وہ آخر شعر. یہ بھی سوچا کہ جان دے دوں میں اس کی خاطر، یہ بھی سوچا کہ جان دے دوں میں اس کی خاطر، جان پھر اس کی بھی جانے کا خیال. یہ بھی سوچا کہ جان دے دوں میں اس کی خاطر، جان پھر اس کی بھی جانے کا خیال رکھتا. لیکن نظم میں سنا دوں ضرور ہو گیا تو انتظار مسلسل. رات بہت بیت چکی ہے، میں دروازے پر دستک دے رہی ہوں. رات بہت بیت چکی ہے، میں دروازے پر دستک دے رہی ہوں کیونکہ کسی نے حوالے سے میرا شانہ چھوا ہے. کسی نے حوالے سے میرا شانہ چھوا ہے. یہ جو تمہارا اپنا گھر ہے اور دروازہ بھی کھلا ہے. یہ تو تمہارا اپنا گھر ہے اور دروازہ بھی کھلا ہے. ہاں میں نے چوک کر اسے دیکھا. ہاں تو اپنے گھر پر دستک دے رہی ہو، تم اپنے گھر پر دستک دے رہی ہو. میں سوچ میں پڑ رہی اور پھر میں وہیں دہلیز پر بیٹھ کر اپنا انتظار کرنے لگی. آپ نے مجھے پاکستان تھا جب بھیجی تھی آپ نے کمال نظم، کمال نظم. اب اس آج کی نشست کے سہرے کی جگہ ہیٹ لگائے بیٹھے 70 سے زیادہ کتابوں کے اب یہ مصنف کہتا تھا 70 کتابوں کے مصنف، 70 سے زائد کتابوں کے مصنف ہے اور آپ سب جانتے ہیں. آپ ایک مہینے پہلے کی بات کر رہے تھے نا جی ایک مہینے پہلے کی بات کر رہے تھے. کیا کہنے کا سب انتھک رہے ارشاد. سچی بات یہ ہے کہ آج کی جو محفل ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی کیونکہ چند کچھ عرصہ پیشتر کسی کا فون آیا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے پاکستان میں فاطمہ کے نام سے، میں ان کو نہیں جانتا، وہ کوئی ایم فل کا تھیسس کر رہی ہیں اور شکیلہ رفیق کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی. تو میں نے انہیں ریفرنس دیا جو کتاب میں نے شکیلہ رفیقس لیگیسی لکھی تھی. تو پھر مجھے خیال آیا کہ ان کے بارے میں ایک مضمون میں نے لکھا تھا ان کے افسانوں کے حوالے سے
लेकिन वो कहीं हम सब पे या कहीं पर नहीं छपा था। तो उसने मुझे तहरीक दी। मुझे ये भी था कि इनसे कोई 2 साल से 1.5 साल से बातचीत नहीं हुई, तो इनकी खामोशी जो है, मुझे ये था कि ये कुछ मुझसे हो सकता है थोड़ी थोड़ी नाराज हो, और इनकी नाराजगी भी ये इनकी मोहब्बत की, अपनाइयत की, खुलूस की। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए कि इनकी नाराजगी दूर हो जाए। तो मैंने कहा कि तो मैंने हम सबको वो मजमून भेज दिया, आपने देखा होगा वो मजमून। मुझे, आप यकीन करें, मैं 5 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन 5 साल में सिर्फ 2 दफा मुझे हम सब के एडिटर वजाहत मसूद का फोन आया, और मैं एक्चुअली मरीज देख रहा था। और मैंने कभी जिंदगी में, मैं कुछ 40 साल से थेरेपिस्ट हूँ, मैंने कभी जिंदगी में मरीजा या थेरेपी के दौरान मैंने किसी की कॉल नहीं की। लेकिन जब मैंने वजाहत का नाम देखा और मुझे पता था कि मैंने शकील रफीक का मजमून भेजा है, तो मैंने मरीजा से माजरत की। उन्होंने कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कॉल पिक करो। उन्होंने कहा जी। तो मैंने वजाहत से, उन्होंने कहा कि ये मुझे इंटरनेट पे ये 5 तस्वीरें मिली हैं, तो आप देख लें, क्योंकि आपके मजमून के साथ मैं लगा रहा हूँ, तो अगर आपकी इजाजत हो और आपकी ब्लेसिंग हो। तो मैंने वो तस्वीरें देखी और उनको हाँ की, और उन्होंने कोई आध घंटे में। तो मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि वजाहत में वो मजमून पढ़कर, वो जनरली नहीं वो लगा देते मेरे बहुत से मजमून, कि उनका इंटरनेट पे जाना और इनकी 5 तस्वीरें मुख्तलिफ जगहों से, कि मतलब है कि वो इनके साथ उस मजमून के हवाले से कनेक्ट हो गए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने डरते डरते पहले नाहिद को, फिर इनको फोन किया। मैंने कहा कुछ राजी हो गई, डरते डरते। तो ये बाकी खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। तो मुझे ये मतलब ये सुनकर फोन पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये एक तरह से ना मतलब है कि ये जिंदगी के उस दौर में है, जिंदगी सिर्फ उम्र की बात नहीं, मतलब है कि इनकी जो सेहत का वो है, तो कभी कभी फिक्र होती है, कभी कभी परेशानी होती है कि ये मतलब है कि एक स्ट्रगल से, एक वो जो फाइब्रोमाइल्जिया की बात करी, मतलब एक पेनफुल सिचुएशन है कि आपकी एग्जिस्टेंस जो है, उसके अंदर एक दर्द है, एक मतलब है। लेकिन उसके बावजूद जो इनकी रेजिलियंस है, दोबारा इनसे बात हुई, फिर मुझे खुशी हुई कि उसके बाद इन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम हो जाए। मैं नाहिद से बात करती हूँ, आमिर से बात करती हूँ। मैंने कही तो बहुत अच्छी बात है, और दोस्तों को मैं बुलाना चाहती हूँ। दोबारा मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात हुई, मुझे बहुत इसका एक एक्साइटमेंट थी कि उस शायद वो मजमून एक हवाला बना, एक बहाना बना कि हम आज यहाँ मिल बैठे। तब मैं आपसे ना, सच्ची बात है, इनसे हमारी बहुत मतलब मेरी कोई 30-40 साल से इनसे दोस्ती है। तो कुछ चीजें मैंने देखी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने कहीं ना लिखा ना कहा। जहां तक फन का ताल्लुक है, मैं अब आपको अपनी एक राय देता हूँ। जब मैं ऑस्कर अवार्ड्स देख रहा होता हूँ, तो उन लोगों से, उन एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के मुकाबले में जिनको उस साल का बेस्ट एक्टर या बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है, उससे ज्यादा मैं आखिर तक इसलिए देखता हूँ कि उस प्रोग्राम के आखिर में वो एक किसी ऐसे एक्टर या इसी अदाकार को अवार्ड देते हैं जिसको वो कहते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जैसे एक साल जेन फोंडा को मिला कुछ एक फिल्म में, वो ऑन गोल्डन पॉन्ड जो फिल्म बनाई थी, लेकिन उनके वालिद को, हेनरी फोंडा को, सारी उम्र किसी एक फिल्म के अवार्ड नहीं मिला। लेकिन उनकी जो 50 साल खिदमात थी, उनकी जो एक तरह से काविशी थी, उसको उन्होंने एक्नॉलेज की। तो मैं समझता हूँ कि जो लाइफ टाइम कमिटमेंट है, जो शख्स 20, 30, 40, 50 साल एक फन को देता है, तो मैं ये समझता हूँ कि शकीला रफीक का एक टोटलिटी में अगर अदब का अवार्ड है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कि इन्होंने क्या कुछ की थी, ये एक मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि इन्होंने खामोशी से, मुस्तकिल मिजाजी से, एक वो जो रेजिलियंस है, वो जो डेडिकेशन है, वो जो एक मैराथन रनर का जो स्टेमिना है, उस हवाले से इन्होंने एक काम किया। एक मैं इनकी क्रिएटिव हवाले से एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, वो इनके साथ दोस्ती है। सच्ची बात यह है कि हम एक मिक्स्ड कंपनी में हैं कि पाकिस्तान में नौजवानी में आपका ऐसी लाइफ सिचुएशन हो जाए कि आपके शौहर ना रहे, आपके 4 बच्चे हों, और आप एक जवान औरत हो। पाकिस्तान में एक जवान औरत का, एक सिंगल मदर का, मैं ये समझता हूँ कि इनके साथ जो दोस्ती है, इन्होंने अपने आप को, मैंने कभी भी वो फील नहीं किया कि जो एक औरत मर्द का एक रिश्ता है, उसके हवाले से जो 2 इंसानों का रिश्ता है, मतलब इन्होंने, और ये बहुत कम लोग, बहुत कम ख्वातीन में मैंने पाया कि वो आप उनसे मिले और वो जो 2 इंसानों की एक दोस्ती है, जो एक अपनाइयत है, बेतकल्लफी भी है
लेकिन उस तकल्लुफी में जो एक डिग्निटी है, वो जो डिग्निटी के साथ जिंदा रहना जो है ना, वो मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि मैंने इस डिग्निटी के साथ और उस डिग्निटी के साथ एक आउटस्पोकननेस, ये चाहे हो सकता है बाद लोगों को अच्छा ना लगे, बाद को लगे कि जी ये बहुत बात, लेकिन ये अपना सच जो है बगैर ये ख्याल किए कि दूसरा उसके बारे में क्या समझता है, तो ये हाँ वो तो ठीक है लेकिन ये अपना सच जो है तो ये दूसरी बात है और तीसरी बात ये है जो मैंने महसूस की, इनकी जो अगर आप इनके लॉन्ग टर्म इनकी लाइफ का एवोल्यूशन देखें तो मेरा ख्याल है ये वाहिद राइटर है जो मैं जानता हूं जो वक्त मेरी बहन को जब पता चला अम्बरीन कौसर को कि मैं शकीला रफीक को जानता हूँ, उतने एक्साइटमेंट का तो मुझे उनसे मिलवा सकते हो कि इनका एक वो दौर था जब ये डाइजेस्ट और ऐसी उर्दू डाइजेस्ट पता नहीं कौन सा खातिन डाइजेस्ट उन मिसालों में लिखती थी और मेरी बहन अम्बरीन कौसर उन मिसालों की कारी है। फिर उसके बाद ये इन्होंने संजीदा लिखना शुरू किया फनून और मुख्तलिफ अदबी रिसालों में जिसका कि मैं कारी हूँ, तो जो अम्बरीन कौसर के हीरो हैं वो मेरे हीरो नहीं है और जो मेरे हीरो हैं उनके हीरो, ये वाहिद राइटर है जिनको मेरी बहन अम्बरीन कौसर भी पसंद करती है और मैं भी पसंद करता हूँ। तो ये जो एक इसको आप डुअलिटी कहें या एक एवोल्यूशन कहें कि बहुत कम लोग मतलब अगर आप हार्डली रोमांस सारी उम्र लिखते रहे उसके बाद आप एक संजीदा अदब जिसको हम अदब आलिया कहते हैं वो लिखें, वो लिखना चाहें तो अक्सर लोग मेरा ख्याल है वो पुल पार नहीं कर सकते जो इन्होंने किया, ये बहुत ही बिना। तीसरी बात यह कि इनके अफसानों में जो मुझे महसूस हुआ कि वो अभी जो हम बात कर सकते हैं आलमी अदब में, तो जो रशिया के अंदर जो एक सोशल रियलिज्म की जो तहरीक थी, हकीकत पसंदी और एक नेचुरल जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, बजाय एक प्योर फैंटेसी बहुत ही उस तरह का जो आप लिखते हैं, जो जदीद जिसको हम जदीद अफसाना या जदीद अदब कहते हैं, तो उस जदीद अदब का जो पाकिस्तान में या उर्दू अदब में जो हुआ उसके मिक्स्ड रिएक्शंस है। ठीक है, उसने उर्दू अफसाने के इम्कानात को आगे बढ़ाया, लेकिन जो कारी था, जो प्रेमचंद का और जो मिंटो का और जो इसमें चुगताई का और जो राजेंद्र सिंह बेदी का कारी था, वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये जदीद जो अफसाने लिखे गए जिसमें रशीद अमजद भी हैं, जिसमें कुछ अफसाने मंशा के भी हैं, कुछ सज्जाद अनवर सज्जाद के भी हैं, तो जिसके अंदर पहले किरदार चला गया, फिर प्लॉट चला गया, फिर उसका एक मोड़ चला गया, फिर बहुत सी चीजें चली गई, बहुत सी चीजें ऐड हुई, किरदार का कोई नाम नहीं है, आप नहीं जानते कि वो मर्द है कि औरत है, वो किस क्लास का, किस तबके का, किस बैकग्राउंड का, किस कल्चर का वो नुमाइंदा है। तो उसको यूनिवर्सल बनाने में मैं समझता हूँ कि हमने कुछ कारी खो दी, जो उर्दू अफसाने के पहले कारी थे। शकीला रफीक का जो उनका क्या उसे कहते हैं, जो एक्सपर्टीज जो है, वो एक सोशल रियलिटी को, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस या अपना तजुर्बा या अपना वारदात या अपना मुशाहिदा, उस पर बहुत गहरे पाँव है। उसके मुकाबले में जो जब आप फैंटेसी के हवाले से लिखते हैं तो आपका जो जमीनी हकायक के साथ रिश्ता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि अब ऐसे लिखने वाले कम होते जा रहे हैं, लेकिन इनका एक खास उसलूब है, ये शायद एक तर्ज इनकी, अब ठीक है आप उस रवायत के अगर नहीं है तो आप शायद उसको पसंद नहीं करते, लेकिन मैं इनके अफसानों को बहुत इंजॉय करता हूँ। और अगरचे ये माहिर नफ्सियात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किरदारों की जो नफ्सियात है, जो रिश्तों की जो नफ्सियात है, उसकी जो सटलिटीज है और वो चीजें जो बहुत इनके मैंने एक दो अफसाने तर्जुमा भी किए हैं, मतलब है कि ये मिलने में जो शकीला रफीक एक थोड़ी सी रवायती या थोड़ी सी मतलब मजहबी कहे या उस तरह कहे, लेकिन ये शकीला रफीक जब कलम उठाती है और जब लिखना शुरू करती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम इनके जो सोशल इनहिबिशंस कहें या एक जो कंडीशनिंग है, इससे वो बाहर निकलकर उस किरदार के हवाले से ये ऐसी चीजें, मतलब है कि अब एक औरत की शादी हो रही है और उसको तैयार किया जा रहा है सुहाग रात के लिए, और उसकी खाला या कोई रिश्तेदार होती है उसको एक लेक्चर देना चाहती है, वो सुनती रहती है बेजारी से, वो आखिर में उससे कहती है कि ठीक है आपने सब बातें कर ली। ये तो उन लोगों के लिए होती है जो पहली दफा इस तजुर्बे से गुजरते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि ये चंद जुमले जो है वो इनकी सोच, इनकी फिक्र, और जो खास तौर पे जो पहली नस्ल के हाजिरीन है पाकिस्तान से हिजरत करके आए, उनके और उनके बच्चों के और उनकी जो फैमिलीज के, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने इनके अफसानों से कुछ निस्वानी किरदारों की वो नफ्सियात जानी जो मुझे आपको नफ्सियात की किताबों में नहीं मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी एक बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। फिर ये दिन का इस्मत आपा, इस्मत चुगताई के बारे में एक घंटे का इनका इंटरव्यू हुआ, उसके हवाले से उन्होंने लिखा। मैं वाकई कहता हूं कि ये जो इस्मत आपा है, ये किताब पाकिस्तान इंडिया के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी क्या उसको कहते हैं निसाब का हिस्सा है या होनी चाहिए, अगर नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो इन्होंने एक किरदार को, एक मतलब इस्मत चुगताई को जो एक सेलिब्रिटी है उनके साथ गुफ्तगू करते हुए इन्होंने जो पूरा बैकग्राउंड, एक सोशल जो अदबी जो उसका पस मंजर है, मतलब है वो एक बहुत ही नॉन फिक्शन में एक बहुत ही एक कामयाब और बहुत ही एक पावरफुल, आप शुरू करें आप आखिर तक पढ़ते चले जाते हैं, उसके अंदर एक फ्लो है, उसके अंदर एडिबिलिटी है और उसके अंदर अदबी और सोशल इंसाइट्स है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इनको वो एक्नॉलेजमेंट मैं इसका इकरार करता हूँ कि क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि बहुत आउटस्पोकन है और इनको पब्लिक रिलेशन का कुछ ज्यादा फिक्र नहीं, इन्होंने उन चीजों को, उन लोगों से और उन मर्दों से एक फासला रखा जो हो सकता है इनको शोहरत या मकबूलियत की सीढ़ियां चढ़ाते, लेकिन इनकी जो इंटेग्रिटी थी, इनका जो अपना एक इनोसेंस है, इनकी अपनी जो एक जिसको हम रवायती अंदाज में पाकीज़गी कहते हैं, मतलब इनके अंदर एक बहुत ही उस तरह का एक जो डिग्निटी है, उसका एक तरफ एज ए इंसानियत, इंसान होने के जिनको फायदा हुआ, मैं समझता हूँ उनको बतौर अदीब के और अदीबा होने के उसका एक नुकसान भी हुआ, लेकिन वो इनकी जिंदगी तक है। मतलब है कि ये चीजें वक्ती होती हैं, ग्रेजुअली लोग इनको, मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे। ये जो खातून है, मैं नहीं जानता फातिमा कौन है, मुझे खुशी हुई कि एक अनजानी बच्ची पाकिस्तान में एमफिल का थीसिस कर रही है। आखिर में एक बात कहूँ जो एक पर्सनल हवाला है, वो पर्सनल हवाला ये कि ये वो उन दोस्तों में से है कि मैं इनसे मिला, ये 80s में आई थी, मैंने मुझे अपनी किताब दी राइटर्स फोरम में, उसके बाद मैंने इनको खत लिखा क्योंकि इनका एक अफसाना था जो मौत के बारे में था, मैं उससे बहुत इंप्रेस हुआ, मैंने इनको खत लिखा एक्नॉलेजमेंट का, फिर इनके साथ खतो किताबत हुई, फिर ये एक दो दफा और आई, मतलब ये PIA के साथ काम करती थी, फिर ये मिसिसागा में थी, मुझे वो शाम याद है कि कहने लगी कि मेरा बेटा ह्यूस्टन से आया है और ये आमिर इनसे मेरी मुलाकात करवाई। आप यकीन करें कि 8 घंटे के बाद मुझे इतनी याद जिंदगी में कि किसी और मर्द हो या औरत हो, किसी के साथ ऐसा इमोशनल, क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन इतनी जल्दी हुआ। मतलब 8 घंटे में इन्होंने मेरी तरफ आंखों में देखा कि वालिदा के एहतराम में इन्होंने कहा कि कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ जो मैं वालिदा के सामने नहीं कर सकता, तो मैंने कहा मेरे साथ चला। आप यकीन करें ये मेरे साथ विटबी गए, ये पहली मुलाकात है, और 2 दिन पूरा वीकेंड मेरे साथ रहे। अब तो ये अच्छा कि ये आमिर टैकल कहीं आमिरा होती तो कुछ और कहानी बन जाती कि यार ये तो वीकेंड के लिए ले गया। इनको मैंने अपनी ग्रीन जोन की किताब दी, और जब अगली दफा मेरी मुलाकात हुई तो इनकी जो शरीके हयात थी उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब आपने मेरे शौहर पे क्या कर दिया, क्या जादू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे ये आपकी ग्रीन जोन किताब तकिए के नीचे रख के सोते। और ये मैं आज पहली दफा पब्लिकली नॉलेज करना चाहता हूँ कि जो ग्रीन जोन सीरीज में जो इनका किरदार रहा है उसको प्रमोट करने में, सपोर्ट करने में, मुझे इंस्पायर करने में, मैंने ग्रीन जोन फिलॉसफी लिखी थी, साइकोलॉजी लिखी थी, इन्होंने मुझसे कहा और मैंने उसके दिबाचे में एक्नॉलेज किया कि जो 7 स्टेप्स बुक है, इन्होंने मुझे कहा कि बहुत से लोग फलसफे को उस तरह टाइट्रेट नहीं कर सकते, तो आप आम लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप्स में आप लिखें ताकि लोग उसको फॉलो करें। तो इनका वो मशवरा था जो उस पर मैंने अमल किया। फिर हमने अब उस पर एक ऐप भी बन रहा है, ग्रीन जोन ऐप बन रहा है, उसका क्रेडिट मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। फिर नाहिद से मुलाकात हुई और नाहिद साहबा ऑनेस्टली इनका जो अपनी वालिदा से जो उनकी मोहब्बत है, जो प्यार है, मैंने जिंदगी में ऐसी बेटी नहीं देखी जो इतनी खिदमत गुजार और इतना ख्याल रखने वाली है। ये बहुत रेयर चीज है। और वो ऐसे कोई वो नहीं जैसे कोई होता है ना, कोई फर्ज निभाने वाली बात नहीं, ये दिल से, अपनाइयत से, खुलूस से एक जेन्युइन जो है ना एक्नॉलेजमेंट, लव एंड अफेक्शन एंड केयरिंग, तो मैं ये समझता हूँ कि
یہ खुशकिस्मत माँ है। ऐसे बच्चे आमिर जैसे और नाहिद जैसे बच्चे हों जो उनको इतना चाहते हों, ये बहुत कम लोगों को जिंदगी में ये तोहफे नसीब होते हैं। फिर ये हुआ कि जब मैं इनके घर आने लगा तो इनके बच्चे, आमिर के बच्चे, नाहिद के बच्चे, उनके साथ मुलाकात होती थी, उनके साथ गपशप लगती, डिस्कशन होती। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा इस फैमिली के साथ 3 जनरेशंस का एक रिश्ता है। अब वो एक और बन रहा है, वो अख्तर हुसैन जाफरी, अब अमीर हुसैन जाफरी, फिर ज़ाहिर हुसैन जाफरी, तो एक और इन द मेकिंग है। लेकिन ये तो जो शकीला रफीक के साथ है, ये तो एक बहुत ही एस्टेब्लिश हो गया है, हो चुका है। और मुझे खुशी है कि उनके साथ, जैसे इनकी बेटी का एक दफा फोन आया कि हम पापा अब्बू के बारे में वो बर्थडे मना रहे हैं, आप कब आ सकते हैं, इस तरह की गुफ्तगू। बहरहाल इनके साथ जो मेरी दोस्ती है, मुझे उस पर फख्र है। इनकी जो क्रिएशंस हैं, मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि वो मेरी दोस्त हैं, मैं समझता हूँ कि एक खास रवायत का जो उर्दू का फिक्शन है, उसके अंदर सोशल रियलिज्म की रवायत में शकीला रफीक का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत भरपूर है। और अब तो खैर ये इनका नॉन फिक्शन में, ये शायरी में, वो तो मतलब इनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी क्रिएटिव होराइजन को बढ़ाए, फैलाए। लेकिन जो इनके चंद अफसाने हैं जिनका मैंने तर्जुमा भी किया है, मतलब है कि जब बात ये होती है कि आप अगर कोई उर्दू अफसाने की एंथोलॉजी बनाएगा और उसके पिछले 50 सालों के 50 अफसाने जमा करेगा, तो उसमें जरूर इनका एक अफसाना या 2 अफसाने उसमें शामिल होंगे। ये बोर्खेस भी कहता है कि अदीब बात अदीब की नहीं है, जो आपने अदब क्रिएट किया है, कि वो अदब का जो मेन धारा है, जो मेन स्ट्रीम है, क्या उसका वो हिस्सा बनता है नहीं। ये एक फाइनल टेस्ट है। और किसी की एक लाइन आ जाती है, किसी का एक शेर आ जाता है, किसी की एक नज़म आ जाती है, किसी का एक अफसाना आ जाता है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत अदीब हैं जिनकी चीज़ें जो हैं वो अदब के मेन धारे में, मेन स्ट्रीम में उसका एक्नॉलेज हो, रिकग्नाइज हो, चाहे जल्द हो या बदेर हो, उसके अंदर जान है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद बहुत ही भरपूर तहरीरें लिखी हैं, तख्लीक की हैं, जिस पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे खुशी है, फ़ख्र है कि आज की ये महफिल आप लोगों ने सजाई और मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं रोजे वाला? मेरे को ले जा रहा हूँ अपने घर। वहाँ से जब फोन आया, अभी मैं रुक गया, 2 दिन रहूंगा। संभल के रहना। अब आप जरा बताएं इसका वाकया। 6-7 घंटे में अदब, फलसफा, म्यूजिक, आर्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, कोई हमने कुछ छोड़ा नहीं। लग रहा है कि जो टॉपिक्स में छेड़ने जा रहा हूँ उसमें ज्यादा इख्तिलाफ आ सकते हैं। तो मैंने कहा कि भैया कुछ बातें ऐसी हैं जो बैठ के अलग से करेंगे। तो मैंने कहा चलो मेरे घर चलो। तो मैं अकेला आया हुआ था, तो मैंने कहा चले आपके घर चलते हैं। तो हम लोगों ने बातें चले गए, हम रात गाड़ी में बातें करते, सुबह सो के उठे, नाश्ता किया, तो हमारी बातें नहीं खत्म हुई। तो हम लोग फिर गुफ्तगू जारी शुरू हो गए। तो उसमें टॉपिक्स ऐसे थे कि वो तसलसल खत्म नहीं हुआ। तो मैंने फिर वो तशनीकी का एहसास था। तो कह रहे तुम्हें कहीं जाना है? मैंने नहीं, मैं तो छुट्टियों पे हूँ, कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर तो इस तरह वो हमारा जो 2-3 दिन जो पूरा वीकेंड था, वो हमने नाश्ता किया, लंच किया, डिनर किया और बात करते रहे। तो बात जो थी वो मुख्तलिफ इख्तिलाफी थी, तो कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, या ये कि मुख्तलिफ इख्तिलाफी थी, बात दिलचस्प इतनी थी, उसे खत्म करने को दिल नहीं चाहा। हमारी मुलाकात में उसमें अम्मी का भी बड़ा रोल होता है। जब मेरी अम्मी मुझसे कह दें कि अगर अम्मी को कोई पसंद है, अम्मी का मुश्किल तुम्हें पसंद आता है, तो अम्मी किसी को तारीफ करती है किसी की भी, तो मैं फिर कहता हूँ कि हाँ अम्मी बड़ी, क्योंकि उनमें एक डीप ऑब्जर्वेशन है, डीप ऑब्जर्वेशन के और लोगों को पहचानती है। कैंडिडेट वो है, इजहार मेरे मुझ में नहीं है, मतलब मैं उनके 100% तो बात करता हूँ। जब वो कह रही कि फलाना शब्द जो है वो बहुत अच्छा है, जब वो कह देती है मुझे पता ना, उससे वो नाराज होना एक अलग बात है। वो बड़ी मुश्किल से किसी की तारीफ करती हैं, जो अपने खास दोस्तों, जैसे आज बुलाया तो मैंने कहा तो इसका मतलब है खास दोस्त आए, ये सारे वो लोग हैं जो टेस्ट पास कर लिए हैं, टेस्ट पास कर, बहुत मुश्किल शकीला रफीक। क्योंकि अम्मी बचपन से मैं देख रहा हूँ, तो ये भी इनके शहर में गिरफ्तार है। कभी हमारी अनबन हो जाती है ना, तो मैं फिर फोन नहीं करी, इनको देखा कुछ
हम खा पाए वो करें, चलता रहता है। बहुत ज्यादा पागल इनके पीछे, बिल्कुल ही ना हो जाता बस ये हंसो देख में पकड़ ली। बहुत ज्यादा मुतासिर ना हो जाए। नहीं वो मैं इनके बेटे मुतासिर किसी से इतना नहीं होता। सही बात है। बिल्कुल मुतासिर से ज्यादा मैंने मेरे ख्याल में सीखने को मैंने अपनी वालदा से बहुत सीखा। बहुत अच्छी शायरी सुनने को मिली फैसल। बहुत शुक्रिया, तो अपना बहुत कुछ शुक्रिया। सुनाते ही बहुत अच्छा सुनाया यार। बहुत अच्छी शायरी। डॉक्टर साहब शायरी रह गई। इसमें हम इजाजत चाहे नहीं हम लोगों के साथ काफी बैठक रही है, नहीं वो आते और नहीं अगर वो कोई आ गई, इख्तलाफ बैठी भी। किसी बात से इख्तलाफ भी करते हैं तो इतनी शाइस्तगी से करते हैं कि आप उससे हट नहीं सकते। हम लोग इतने अरसे से बचपन से जानते हैं उनको। जी 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 40 years in Canada, I think 30 years I know you, huh? जी जी बिल्कुल long 80 long time. शाखे तन्हाई पे डर डर के खिले हैं चुप है। शाखे तन्हाई पे डर डर के खिले हैं चुप है। हम के हालात के धागे से बंधे हैं चुप है। शाखे तन्हाई पे डर डर के खिले हैं चुप है। हम के हालात के धागे से बंधे हैं चुप है। हमने शीशे का मकान मिलके बनाया लेकिन हमने शीशे का मकान मिलकर बनाया। जब से जाना है कि पत्थर के बने हैं वाह चुप है। वाह वाह। हमने शीशे का मकान मिलके बनाया लेकिन जब से जाना है कि पत्थर के बने हैं चुप है। हमको हर रिश्ते से जन्नत की थी उम्मीद पर अब हमको हर रिश्ते से जन्नत की थी उम्मीद पर अब खानदानों की जहन्नुम में जले चुप है। वाह और जीस की आग में जल जल के फवां करते रहे। जीस की आग में जल जल के फवां करते रहे और उस आग में कुंदन जो बने हैं चुप है। और जीस की आग में जल जल के फवां करते रहे और उस आग में कुंदन जो बने हैं चुप है। और दोस्त अहबाब बड़े रश्क से मिलने आए। दोस्त अहबाब बड़े रश्क से मिलने आए। हम जो घर छोड़ के जंगल को चले हैं चुप है। और हमने शीशे का मकान मिलके बनाया लेकिन जब से जाना है कि पत्थर के बने हैं चुप है। और इसी के सामने एक और गजल है कि हमारे घर की हर एक चीज बेघरों की तरह। हमारे घर की हर एक चीज बेघरों की तरह शरीर बच्चों की बेरब्त ख्वाहिशों की तरह। हमारे घर की हर एक चीज बेघरों की तरह शरीर बच्चों की बेरब्त ख्वाहिशों की तरह। और हमारे अहद के जी होश खानदां सोचे। हमारे अहद के जी होश खानदां सोचे वो दलदलों की तरह है कि साहिलों की तरह। और जुदा हुए वो घरों से तो यूं लगा सबको। जुदा हुए वो घरों से तो यूं लगा सबको टपक पड़े हों वो आंखों से आंसुओं की तरह। टपक पड़े हों वो आंखों से आंसुओं की तरह। और बहुत से लोग दिलों के करीब थे पर अब बहुत से लोग दिलों के करीब थे पर अब बिखर गए हैं जमाने में फासलों की तरह। और लगता है कि जमाना छुपता है उन शायरों से अब खालिद। जमाना छुपता है उन शायरों से अब खालिद जो शहर जीस्त में आए हैं आईनों की तरह। और हमारे घर की हर एक चीज बेघरों की तरह शरीर बच्चों की बेरब्त ख्वाहिशों की तरह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और नाहिद एक और सुना। मैं वो जल्दी नहीं पता नहीं अब एक ऐसा सुनाओ जरा आराम से। पता नहीं मुलाकात अब होगी या नहीं। बड़ी मुलाकातें आपसे, बड़ी शायरी। अभी तो आपको एक किताब लिखनी है और आपसे इंशाल्लाह बहुत सी नज़में मुझे सुननी है। उस नजरिए की मौत एक जमा साल नजरिए की मौत।
फैसल की फरमाइश है एक जवासाल नजरिए की मौत पर, क्या? एक जवासाल नजरिए की मौत पर, नज्म का नाम है। रोशनी पांव पांव चलती हुई मेरी आंखों को छूने आई थी। रोशनी पांव पांव चलती हुई मेरी आंखों को छूने आई थी। आंख में अक्स था उजाले का, नींद जब अश्क बन के आई थी। आंख में अक्स था उजाले का, नींद जब अश्क बन के आई थी। रब्त का रंग ही किनारा था, रब्त का रंग ही किनारा था, रब्त का रंग ही किनारा था, शाख किस कहकशां से आई थी। रब्त का रंग ही किनारा था, शाख किस कहकशां से आई थी। उसको कुछ रोज और जीना था, उसको कुछ रोज और जीना था। एक दिन ये खबर भी आई, एक दिन ये खबर। मेरी एक नज्म का बंद है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। खामशी जिक्र है उदासी का, जो कि तन्हाई शब से करती है। खामशी जिक्र है उदासी का, जो कि तन्हाई शब से करती है। शब उसे अनगिनत सितारों में हिजर की रात बांट देती है। खामशी जिक्र है उदासी का, जो कि तन्हाई शब से करती है। शब उसे अनगिनत सितारों में हिजर की रात बांट देती है। हिजर क्या है? हिजर क्या है? ये एक नगमा है। हिजर क्या है? ये एक नगमा है। हिजर तन्हाई का सरापा है। हिजर तन्हाई का सरापा है। वस्ल क्या है? ये एक लम्हा है, लम्स की शाख पर महकता है। वस्ल क्या है? ये एक लम्हा है, ये एक लम्हा है, लम्स की शाख पर महकता है। रात क्या है? मुझे बताओगे? रात क्या है? मुझे बताओगे? रात तन्हाई का इलाका है। इसका पहला बंद है, रात तन्हाई का इलाका है। इस इलाके में तेरी यादों के साथ मेरे तमाम दुख रहते हैं। इसे दूर से अगर देखें कुछ फसीलें दिखाई देती हैं। इसे दूर से अगर देखें कुछ फसीलें दिखाई देती हैं। ये सदाएं हैं, रात की किरणें इन फसीलों को जगमगाती हैं। बात रस्ते में गर ठहर जाए, इन फसीलों पर रात चलती है। बात रस्ते में गर ठहर जाए, रात के पाँव मुज़बहिर तो नहीं, रोशनी की ज़बां में लुकनत है। चांद बादल की ओट रहता है, खौफ कैसा फजा पे तारी है। शाख पर भेद ये नहीं खुलता, टिमटिमाती उदास छाँव में फूल सूरज तलाश करते हैं। तेरी बातों का सन्नाटा रात के वक्त गुनगुनाता है। ताक में हिजर का शरारा है कि मेरे आंख के किनारों पर वस्ल का रंग झिलमिलाता है। हर्फ नौअक्स में तुझे ढूंढूं, शाही इम्कान पर तलाश करूं। वो गुले खुशनुमा जो कागज की पेज पर रात के अंधेरे में झिलमिलाता है, मुस्कुराता है। हर्फ धुंधा गए हैं कागज पर, किस पनागाह में सितारा था। तेरी खुशबू तो मेरा विरसा थी, तेरी खुशबू तो मेरा विरसा थी। पता नहीं क्या, शाम का किनारा था। अब छाँव नहीं उदासी है, धूप आगोश थी किनारा था। जिस घड़ी आई ना हुआ रोशन, खाक ने खाक को पुकारा था।
खामशी जिक्र है उदासी का जो पन सुना दिया। जिंदगी तेरे कितने चेहरे, जब तुझे पहली बार देखा था मेरे हाथों में सब्ज लम्हे थे जिनमें तेरी नमो की हिद्दत थी, और पैरों तले जो रास्ता था उसके हर मोड़ पर वो साया था जिसकी आंखों से तुझको दिखता था। बेजहत रास्तों पे चलते हुए हर नए मोड़ पर हयूलों से खामशी ये सवाल करती है, जिंदगी तेरे कितने चेहरे हैं। मेरी आंखों में रंग हैरत के और होंठों पे मुस्कुराहट है, मैं तेरा जिक्र अब भी करता हूँ। मेरी आंखों में रंग हैरत के और होंठों पे मुस्कुराहट है, मैं तेरा जिक्र अब भी करता हूँ। ये तो पिछले बरस की बातें हैं, तब मुझे खुद से खौफ आता था। घर की दीवार तेरा चेहरा थी, ख्वाब में आईना बुलाता था। वक्त के पांव मुड़ गए थे, फलक ने जमीन पर हिसार खींचा था। ये तो पिछले बरस की बातें हैं, तब मुझे खुद से खौफ आता है। जब भी एल्बम में अपनी तस्वीरें देखता हूं तो घर की दीवारें मुझसे हंसकर ये बात कहती, तेरी आंखों में रंग हैरत के और होंठों पे मुस्कुराहट है, क्या मेरा जिक्र अब भी करती? आप सबका बहुत शुक्रिया नाहिद। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। ये सारी रौनकें आपके दम कदम से है, सच्ची बात है। तो बहुत अच्छा असर पड़ा है। मैं उसका मुस्तकिल डिप्रेशन में रहती हूँ। कब से आमिर कह रहा था अम्मी सिटिंग करें, आपको करना चाहिए, महीने में एक करें, लेकिन बस उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। थेराप्यूटिक मीटिंग। तो मेरे ख्याल है अब तो जरूरत नहीं कराची आने की। अब आपको जरूरत नहीं है कराची जाने की। अगली मैसेज करके जाइएगा, अगली मैसेज करके जाइएगा। आप सब आपका बहुत बहुत आपका बहुत बहुत